کہ یہ کوفہ میں ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، آپ آئے تاکہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر جمع کر دے۔ اور اس وقت کے وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر تھے، ان کے پیچھے لوگوں کو نماز پڑھنے سے ہچکیاں ہو رہی تھی، کوئی کہہ رہے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کوئی کہہ رہے تھے نہیں پڑھیں گے، تو امام حسین کو خط لکھتے تھے۔ تو جب امام حسین کے پاس خط آیا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ وہاں سے خط آیا کیا کیا جائے، تو تمام صحابہ کرام نے یہی کہا کہ یا امام، کوفہ والوں کی بدعہدی مشہور ہے، وہ آپ سے کبھی وفا نہیں کریں گے، وہ آپ سے کبھی وفا نہیں کریں گے، وہ کوئی نہ کوئی ضرور اس کا کوئی چال ہوگا یا کھیل ہوگا۔ تو پھر بعد میں پھر خط آئے، پھر آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو یہ بات طے ہوئی کہ پہلے مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا جائے اور وہاں جا کر وہاں کے حالات لکھے۔ صحابہ کرام کے مشورے پر ہاں امام مسلم کو کہاں بھیجا؟ کوفہ۔ اور امام مسلم جیسے کوفہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو ایک ہی دن میں 40,000 آدمی بیعت میں داخل ہوئے، ایک ہی دن میں 40,000 آدمی بیعت میں داخل ہو گئے۔ تو مسلم بن عقیل نے سوچا کہ یہ لوگ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے فوراً امام حسین کو خط لکھ دیا۔ امام مسلم نے فوراً خط لکھ دیا۔ ادھر امام مسلم کو خط لکھنا تھا، ادھر یزید کو پتا چل گیا، یزید نے فوراً ابن زیاد کو روانہ کر دیا کوفہ، اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو تخت تاج سے ہٹا دیا، تخت شاہی سے ہٹا دیا گیا۔ ابن زیاد بڑا مکار اور چلاک آدمی تھا، وہ جانتا تھا کہ اس وقت آل کوفہ والے امام حسین کے انتظار میں ہوں گے، آل کوفہ والے امام حسین کے انتظار میں ہوں گے۔ وہ قافلے کے شکل میں اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر، اور ابن زیاد امام حسین جس راستے سے آنے والے تھے وہی راستہ اختیار کیا، اور جب کوفہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو لوگوں نے سوچا کہ امام حسین آ گئے ہیں، لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ نعرے میں کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ابن زیاد جب اپنے فوجوں کے ساتھ قلعے کے اندر داخل ہو گیا تو قلعے کی سیڑھی پر چڑھ کر چہرے سے نقاب ہٹایا تو کوفہ والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہ تو امام حسین نہیں، یہ تو یزید کے فوج ابن زیاد۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ ابن زیاد۔ ابن زیاد نے جیسے قلعے کے اندر داخل ہو گیا تو اعلان کر دیا، اے کوفہ والو، تم لوگوں نے امام مسلم کی بیعت کو قبول کر کے ہمارے غضب کو دعوت دی ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم امام مسلم کی بیعت کو جلدی سے جلدی توڑ دو، ورنہ صبح ہوتے ہی تمہارے مکانات جلا دیے جائیں گے، تمہاری گردنوں پر ہماری تلواریں لہراتی ہوئی نظر آئیں گی، تمہاری گردنوں پر ہماری تلواریں لہراتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جیسے ابن زیاد نے اعلان کیا تو کوفہ والے گھبرا گئے، ڈر گئے، اور دھڑا دھڑ بیعت کو توڑنا شروع کر دیا۔ میں مختصر میں لے جا رہا ہوں، دھڑا دھڑ بیعت کو توڑنا شروع کر دیا۔ پھر امام مسلم کے ساتھ بھی لوگوں نے چھوڑ دیا۔ امام مسلم کے لیے کل وہی لوگ ہاتھ پاؤں چومتے تھے، اب جب ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ امام مسلم کو بھی پناہ دینے والا قتل کر دیا جائے گا، کل تک جو لوگ امام مسلم کو ان کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، ان کے ہاتھ بیعت کیے تھے، آج وہی لوگ امام مسلم کو دیکھ کر اپنے دروازے بند کر رہے ہیں۔ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مغرب کے وقت تک امام مسلم کے ساتھ ایک بھی کوفی نہیں تھا، سب ساتھ چھوڑ کر چلے، کیونکہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ سننے میں آیا کہ مسلم بن عقیل بیعت کر رہے ہیں، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ بیعت کو توڑ دو، ورنہ تمہاری گردنوں پر ہماری تلواریں لہراتے ہوئے نظر آئے۔ تو سب نے سب کے سب بیعت توڑ دیا اور دروازہ بند کرنا شروع کر دیا۔ حضرات محترم، آخر کار امام مسلم پیاس کے مارے، شدت پیاس سے بے چین، آدھی رات گزر گئی، کوئی پانی تک پینے کے لیے، پانی جو پیے گا وہ پانی کہیں نہیں مل رہا ہے کہ پانی پیے تاکہ حلق کے اندر 2 قطرہ پانی ہی چلا جائے تاکہ پیاس بجھ جائے۔ کل تک وہی کوفہ والے ہاتھ پاؤں چومتے تھے، آج دروازہ بند کر لیے۔ چلتے چلتے ایک توانا میں عورت، ایک ضعیفہ خاتون، ایک بوڑھی خاتون کے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آدھی رات گزر گئی، دیکھا کہ یہاں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ امام مسلم بن عقیل نے جیسے ہی اس دروازے کے قریب پہنچا تو اس بڑھیا کو سلام کیا۔
उस बुढ़िया ने सलाम का जवाब दिया, फिर इमाम मुस्लिम को भी सलाम किए। इमाम मुस्लिम ने सलाम का जवाब दिया। जवाब देने के बाद इमाम मुस्लिम अर्ज करते हैं, बूढ़ी अम्मा हमें एक गिलास पानी मिल जाएगा? कहा बेटा क्यों नहीं मिलेगा, आओ हमारे घर में बैठ जाओ, आप कौन हो पहले ये तो बताओ। कहा मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। जैसे ही हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, उस औरत की आंखों में आंसू जारी हो गए और रो रो कर अर्ज करने लगी, हुजूर मैं तो आप ही के इंतजार में रात भर बैठी थी, मैं तो आप ही के इंतजार में दरवाजा खोल कर बैठी हुई हूँ। हुजूर आइए हमारे घर में आराम फरमाइए, खाना जो कुछ हुआ खिलाया पिलाया। उसके बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील इबादत में लग गए, इबादत में लग गए। अब तवा नामी औरत जो थी उसको तो पता नहीं कि मेरा बेटा इमाम मुस्लिम का दुश्मन है, और इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया कि मुस्लिम को जो पकड़ कर लाएगा उसको बेपनाह इनाम दिया जाएगा। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया कि मुस्लिम बिन अकील को जो पकड़ कर पेश करेगा उसको बेपनाह इनाम दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब जैसे उस बूढ़ी अम्मा का बेटा आया, माँ को कहा औलाद से प्यार है, कौन माँ ऐसी है कि अपने औलाद से प्यार ना करती हो? हेलो। तो माँ ने कहा बेटा मैं बहुत बड़ी खुश नसीबी हूँ, हेलो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जो दुआ मांग रही थी, दुआ मांगने के लिए दरवाजा खोल कर बैठी हुई थी, फौरन रब तबारक व तआला ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। अल्लाह के हुक्म से इमाम मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में पनाह कर, हमारे घर में आराम फरमा रहे हैं। अब माँ को तो पता नहीं कि मेरा बेटा इमाम मुस्लिम का दुश्मन है। अब जैसे ही बयान किए तो उसका बेटा दिल ही दिल में खुश होने लगा, उसका बेटा दिल ही दिल में खुश होने लगा कि वाह अब तो मजा आ गया, सुबह होते ही जाऊंगा, इब्ने ज़ियाद को खबर कर दूंगा और फिर दौलत से मालामाल हो जाऊंगा। अभी अच्छी तरह से सुबह भी ना हुई थी कि वह जालिम कमबख्त इब्ने ज़ियाद को खबर कर दिया और इब्ने ज़ियाद के फौजों ने आकर मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया, मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया। इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा तुम लोगों में तफरका डालने के लिए आए हो? मुस्लिम बिन अकील ने कहा हम लोगों में तफरका नहीं, अदल इंसाफ कायम करने के लिए आए। कहा तुम और अदल इंसाफ? कहा अदल इंसाफ और किताब और सुन्नत हमारे घर से लोगों को मिली है, अदल इंसाफ किताब और सुन्नत हमारे घर से लोगों को मिली है। इब्ने ज़ियाद गुस्से में लाल पीला होकर कहने लगा, अरे मुस्लिम बिन अकील मैं तुम्हें ऐसी कत्ल करूंगा कि जमाना इस्लाम याद करो, तारीख गवाह रहेगी, मैं तुम्हें ऐसे कत्ल करूंगा। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया, फौजों को हुक्म दिया कि दारुल अमाद की छत पर ले जाओ और वहां ले जाकर इनको कत्ल कर दो, दारुल अमाद की छत पर ले जाओ, वहां ले जाकर इनको कत्ल कर दो। हज़रात मोहतरम फौजों ने मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया और दारुल अमाद की छत पर ले जाने लगे। मुस्लिम बिन अकील ने कहा वो जालिमों कल तक तो तुम ही लोग मेरे हाथ पांव चूमते थे, आज मेरे खून के प्यासे बन गए हो, कल तक मेरे हाथ पांव चूमते थे, आज मेरे खून के प्यासे बन गए हो। तो सुनो, तुम मुझे शहीदी करोगे तो मेरी 3 वसीयतें सुन लो। पहला ये कि मेरा ज़रा बेचकर मैं यहाँ कर्जदार हूँ, उस कर्ज को माफ कर देना। दूसरी बात ये कि मैंने इमाम हुसैन को लिख दिया है खत कि आप फौरन तशरीफ लाए, वो यकीनन कूफे की तरफ रवा दवा होंगे, उसे इत्तला कर देना। और तीसरी वसीयत ये थी कि मेरे नन्हे मुन्ने 2 मासूम बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम है, उन्हें मदीना पाक पहुंचा देना। ये 3 वसीयत की जालिमों ने मुस्लिम बिन अकील को दारुल अमाद की छत पर ले गया और इमाम मुस्लिम बिन अकील कलमा तैयबा का विर्द करते हैं और जालिमों ने जुल्म की तलवार उठाई और सर को तन से गिरा। सवाने करबला में खून की ये पहली लकीर थी जो इमाम मुस्लिम के खून से खींची। फिर इसके बाद इनके बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। अगर बयान करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मुख्तसर नहीं जा रहा। हाँ, अब आखिर में चलिए लास्ट में मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, इनके बच्चे को भी शहीद कर दिए गए। इमाम हुसैन के भांजे उनो मोहम्मद भी शहीद हो गए, कासिम भतीजे भी शहीद हो गए, हजरत अब्बास के बाजू कट गए वो भी शहीद हो गए। अब अली अकबर 18 साल के वो भी शहीद हो गए। सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे 14 साल की उम्र की। कितने साल की? 14 साल की। बीमार थे, उठने की ताकत नहीं। उसके बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन तन्हा रह गए। अब जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मैदान करबला जाने के लिए तैयार हुए, खुद मिस्र कुबा ज़ेब तन फरमाए तो अलविदा कहने वाला कोई नहीं था। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन
अपने बेटे सज्जाद यानी ज़ैनुल आबिदीन के पास पहुंचते हैं, सर पर अमामा बांधते हैं। ज़ैनुल आबिदीन अर्ज करते हैं, अब्बू जान मेरे होते हुए आप मैदान में ना जाए, हालांकि उठने के लिए ताकत नहीं है। उस वक्त भी अर्ज करते हैं, अब्बू जान मेरे होते हुए आप मैदान में ना जाए, पहले मुझे जाने की इजाजत दी। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, बेटा अगर तू चला जाएगा तो सैयदों का सिलसिला नसब कैसे चलेगा, और काफिला को मदीना पाक नाना जान के रोज़े अनवर पर कौन पहुंचाएगा। समझते हैं ना। तो ज़ैनुल आबिदीन रहे। तो उसके बाद फिर सैयदा ज़ैनब से अर्ज किया। सैयदा ज़ैनब कौन है? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की बहन। सैयदा ज़ैनब से अर्ज की, ऐ मेरी बहन, तूने मदीना मुनव्वरा की पुरकैफ गलियों से लेकर मक्का मुकर्रमा के रेगिस्तानों तक, यहाँ तक कि करबला तक तूने सब कुछ देखा पर सब्र किया। ऐ मेरी बहन, तूने उनो मोहम्मद को शहीद होते हुए देखा, सब्र किया। कासिम भतीजों को शहीद होते हुए देखा, टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा, सब्र किया। तूने छोटे भाई अली असगर को कत्ल होते हुए देखा, शहीद होते हुए देखा। मेरे बेटे अली असगर को 6 माह के शहीद होते हुए देखा, तीर खाते हुए देखा, मगर सब्र किया। ऐ मेरी बहन, तूने अपने भाई अली अकबर को शहीद होते हुए देखा, मगर सब्र किया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अपनी बहन को समझा रहे हैं, सैयदा ज़ैनब को, कि ऐ मेरी बहन, तूने अली अकबर को शहीद होते हुए देखा, मगर सब्र किया। अली असगर को शहीद होते हुए देखा, कासिम को शहीद होते देखा, मगर सब्र किया। ऐ मेरी बहन, तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है। ऐ मेरी बहन, अब मेरा इम्तिहान खत्म होने वाला है, तेरा इम्तिहान शुरू होने वाला है, लिहाजा जितना ही जुल्म हो सब्र के साथ सब्र समझ कर गुजार ले। अल्लाहु अकबर। जितना ही यजीद जुल्म करे सब्र करना, सब्र का दामन ना छोड़ना, क्योंकि तो साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है, और तूने ये सब कुछ देखा मगर सब्र किया। ऐ मेरी बहन, जब मैं शहीद हो जाऊं, जब जालिम मुझे शहीद कर दे, तो मेरी मौत पर गिरेबान ना फाड़ना, बाल ना नोचना, कपड़े ना फाड़ना, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दाअ बिदाअल जाहिलिया, जिसने जुबान से गलत अल्फाज को निकाला, गिरेबान को फाड़ा, सीने को चाक किया, वो हम में से नहीं। अब आजकल की ये काम छे, कोई मुड़े गए तो हमार माँ बोले रकम 3 कान बेटे बड़ा जमीन खाने को उठकर मार लो, बालूला तक लड़ा दी। हाँ, जिंदगी रा रोवे तो मारा फिर सबक खाना नहीं पिलावे, दिरा सेबला ने आने खिलावे, जबला मुड़े आवे रकम 3 काम पे मोंडा खाते तो गोड़ा दिल वही वही ढुका दी। हाँ, जीते जी भाई একটা সেব খিলাবে না, একটা আনার খিলাবে না, একটা বেদানা খিলাবে। আর যেই দিন চলে গেল আল্লাহর ছেনি ওড়েগার মাটি খানো আছে পানা মাংস বলা, হাস কাটা ভেস কেটে इधर ते उल्टे उधर उधर ते उधर माथार चुल बिखराल। लेकिन की कहा যায় এই হাদিসটা, লাইসা মিন্না মান যারাবাল খুদুদা व शक्का जुयूबा व दाअ बिदाअल जाहिलिया, जिसने जुबान से गलत अल्फाज निकाले, गिरेबान को फाड़ा, सीने को चाक किया, मुंह को नोचा, वो हम में से नहीं। ऐ मेरी बहन, कभी रोना नहीं, रोने का एहसास करना, मगर चिल्लाना चीखना नहीं, सब्र करना। इतना कहकर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही घोड़े पर सवार होने के लिए तैयार हुए, सकीना 8-10 साल की बच्ची सकीना अपने अब्बा हुजूर के कमर को पकड़ लेती है और रो रो कर अर्ज करती है, अब्बू जान आप सकीना को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? आप वहां जा रहे हो जहाँ से कोई लौट कर वापस नहीं आता। अब्बा जान आज के बाद तो मैं यतीम हो जाऊंगी, बेसहारे हो जाऊंगी, मदीना पाक मुझे कौन पहुंचाएगी? अब्बू जान आप वहां मत जाइए। हजरत सकीना रो रो कर अर्ज करती है, कमर पकड़ लिए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की आंखों में आंसू है। अल्लाह अकबर, क्या कर सकते? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अपनी छोटी सी नन्ही सी फूल हजरत सकीना के सर पर हाथ फेरते हैं और अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से अर्ज करते हैं, बहन मेरी बेटी सकीना को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसको एहसास यतीमी ना होने देना, तो एहसास यतीमी ना होने देना। अब हजरत अली अकबर जैसे घोड़े पर सवार हुए, जुल्फ़ाकार हैदरी को लिया, मैदान करबला पहुंचे। जालिमों ने सोचा कि इमाम हुसैन आएंगे और हमारे पास हमारे यजीद की बैत कबूल कर लेंगे, हमारी यजीद की बैत कबूल कर लेंगे, क्योंकि उसका तो यही मुतालबा था कि यजीद की बैत कबूल कर लो। अब तो ये अकेला बचा, तना बचा, डर के मारे हमारी बैत कबूल कर लेंगे।
इमाम हुसैन ने उस वक्त भी कहा, ओ जालिमो अभी भी वक्त है, मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन मत करो, वरना दुनिया में भी बर्बाद हो जाओगे, मरने के बाद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चेहरा दिखाने की भी लायक नहीं रहोगे। उस वक्त भी समझाया कि तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं वो हूँ जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर सवारी फरमाया करते थे। मैं वो हूँ जिसका झूला फरिश्ते झुलाते थे। तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं वो हुसैन हूँ जिसका झूला फरिश्ते झुलाते थे। मैं वो हुसैन हूँ जिसको देखकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुमा का खुतबा बंद कर दिए थे। मैं वो हुसैन हूँ जिसके लिए नाना जान ने सजदे को ही लंबा फरमा दिए थे। मैं वो हुसैन हूँ कि एक साहबी रसूल जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ला रहे थे तो रास्ते में एक हिरनी का बच्चा मिला। तो उस हिरनी के बच्चे को लेकर वो साहबी रसूल हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गए। जैसे ही तशरीफ ले गए, सामने हसन मुज्तबा थे। कौन? हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन के बड़े भाई। इमाम हुसैन नहीं थे, हसन मुज्तबा थे। तो हसन मुज्तबा ने अर्ज किया, नाना जान ये हिरनी का बच्चा मुझे दे दो, ये हिरनी का बच्चा मुझे दे दो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस हिरने के बच्चे को हजरत हसन मुज्तबा को दे दिए। अब हजरत हसन मुज्तबा खेलते खेलते घर पहुंचे तो छोटे भाई ने जैसे ही देखा कि मेरे भाई के पास हिरनी का बच्चा है, अर्ज करने लगे, ए मेरे भाई ये हिरनी का बच्चा मुझे दे दो। अब छोटा भाई बड़े भाई से कह रहे हैं, ए मेरे भाई ये हिरनी का बच्चा मुझे दे दो। और वो हिरनी का बच्चा कौन लाए थे? साहबी रसूल रास्ते में मिले, तोहफे में दे दिए। अब हजरत हसन मुज्तबा के पास जैसे इमाम हुसैन ने अर्ज किया तो हसन मुज्तबा ने क्या कहा? हसन मुज्तबा ने क्या कहा? ए मेरे भाई जा तू भी नाना जान के पास, तवज्जो इधर इधर इधर, जा तू भी नाना जान के पास और हिरनी का बच्चा ले ले। तू भी जा नाना जान के पास और हिरनी का बच्चा ले ले। अब हिरनी का बच्चा कहाँ से आता? हजरत इमाम मकाम इमाम हुसैन की अजमत, इमाम हुसैन का मकाम, इमाम हुसैन का रुतबा, इमाम हुसैन की शान क्या है आज इंसान होकर नहीं समझते। इस हिरनी के बच्चे से सबक सीख लो, इस हिरनी से नसीहत हासिल कर लो कि एक हिरनी को इमाम हुसैन से किस कदर मोहब्बत थी। इमाम हुसैन का मकाम ये हिरनी किस तरह से समझती थी कि इमाम हुसैन कौन है। इस जानवर से समझो, इस हिरनी से समझो कि इमाम हुसैन कौन है। जैसे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए, आंखों में आंसू जारी ही होने वाले थे। अर्ज करते, नाना जान मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए, मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए। अभी अर्ज ही कर रहे हैं कि इतने में हिरनी की माँ दूसरी बच्ची लेकर खुद ब खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हो गई और अर्ज करने लगी, हुजूर पहले बच्ची जो एक साहबी रसूल पकड़ कर लाए थे वो बच्चा भी मेरी ही थी और ये दूसरा बच्चा मैं खुद लेकर के आ गई हूँ, इसलिए कि मैं अपने बच्चों की जुदाई को तो बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर इमाम हुसैन रोए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। मैं अपने बच्चों की गम को, मैं अपने बच्चों की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती हूँ। हिरनी दूसरे बच्चे लेकर खुद ब खुद हाजिर हो गई। जब तक इमाम हुसैन रो पड़ते कि मुझे हिरनी का बच्चा चाहिए, इतने देर में हिरनी दूसरे बच्चे लेकर आ गई और अर्ज करते हैं, हुजूर वो दूसरा हिरनी के बच्चे जो लेकर एक साहबी रसूल लाए थे वो भी मेरी ही बच्ची थी और ये दूसरी बच्चे मैं खुद लेकर के आई हूँ, इसलिए कि मैं अपने बच्चों की जुदाई को, गम को तो बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर इमाम हुसैन रोए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। आज के दिन यौम आशुरा के दिन हिरनी भी रोते हैं, जानवर भी रोते हैं इमाम हुसैन के गम में, मगर इंसान होकर ढोल बजाते हैं। अब अफसोस की बात है कि नहीं भाई, आज के दिन हिरनी, जंगल के हिरनी वो भी रो रहे हैं, गम मना रहे हैं
हिरनी रो रहे भाई आज हिरनी। अब बताओ इमाम हुसैन की याद में, और इंसान को एक जरा सा भी इंसान के दिल में आज खुदा का खौफ नहीं है कि इमाम हुसैन ने अपने खानदान को लुटा दिए थे, कुरान करीम की तिलावत में गुजार दिए थे, पूरी रात कुरान की तिलावत की थी, तहज्जुद पढ़े थे, और हम लोग हैं कि एक हरफ कुरान पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं छोटा सुनो नहीं। इमाम हुसैन मैदान करबला गए, इमाम हुसैन के साथ कोई ऐसा बंदा पैदा ही नहीं हुआ था कि कोई उससे मुकाबला कर सके। इमाम हुसैन की तलवार जब चल रही थी तो गाजर और मूलियों की तरह कट रही थी। किसी में हिम्मत नहीं कि इमाम हुसैन की तलवार को रोक दे, मगर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमाम हुसैन की तलवार अचानक रुक जाती है। क्यों? कि अजान हो चुका, नमाज का टाइम हो चुका। इमाम हुसैन तीरों की बारिश, तीरों की बरसात में जैसे ही देखा कि नमाज का टाइम हो चुका, तलवार रुक गई। यजीदी फौजों में कोहराम बर्पा हो गया। पहले तो यजीदी फौज भाग रहे थे कि इस तलवार के सामने मुकाबला करने के लिए हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, चलो भागो, वरना यही एक तलवार, यही एक हुसैन सबको कत्ल कर देगा, सबको मार डालेगा, चलो भागो। यजीदी फौज भागना शुरू कर दिए थे, मगर जैसे ही टाइम हो चुका, इमाम हुसैन नमाज के लिए रुक गए। यजीद ने कहा अचानक ये तलवार कैसे रुक गई? इमाम हुसैन सजदे में गए। शिवरी ने कहा यहीं पर एक मौका है, अगर इसका सर यहाँ कलम नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। जैसे इमाम मकाम इमाम हुसैन सजदे में गए, शिवरी ने सर को तन से जुदा, और जैसे ही सर को तन से जुदा किया, आसमान में एक सुर्ख गुबार उठा, आसमान में एक सुर्ख गुबार उठा। पूरी दुनिया, तमाम जहान तारीख हो गया, पूरी दुनिया अंधेरा ही अंधेरा छा गया। सामने खड़े होने वाले की सूरत तक दिखाई नहीं देती थी। पूरा सारा जहान, तमाम जहान अंधेरा ही अंधेरा छा गया। अंधेरा इस कदर छा गया कि सामने खड़े होने वाले आदमी की सूरत नजर नहीं आती। जब वो अंधेरा हटा तो क्या देखते हैं कि आसमान से खून टपक रहा है, आसमान से खून टपक रहा है, और जमीन से अगर पत्थरों को उठाते हैं तो उस पत्थर के नीचे ताजा ताजा खून मौजूद है। उस पत्थर के नीचे ताजा ताजा खून मौजूद है। और जैसे इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, अल्लाह अकबर, तो संग दिल कूफियों ने एक जश्न तरतीब दिया, एक जश्न का तरतीब दिया। तमाम सरों को तकसीम कर दिया गया, तमाम सरों को आपस में बांट लिए गए। मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो आज तक कभी आप लोगों ने सुना नहीं, और जो कोई सुन लेगा फिर इसके बाद कभी ना ताजिया, ना ढोल, ना आखरा करेगा। तवज्जो से आज काम की बात बताना चाहता हूँ। बस कई मिनट और रुक जाओ, कभी नहीं सुने होंगे। इसके बाद क्या होता है, यहाँ तक तो सब सुनते हैं, इसके बाद कैसे हुआ, यजीद का नाम कैसे मिटा। यजीद तो जीत गए ना, अब जश्न का वो तरतीब दिया, यजीद जीत गए, यजीद ने सोचा मैं जीत गए, इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, यजीद का बोलबाला हो गया। यजीद ने जश्न का तरतीब दिया, तमाम सरों को तकसीम किया गया। इमाम हुसैन के जुब्बे, अमामा, नालाइने पाक सबको लोगों ने बांट लिया, आपस में तकसीम कर लिया। अल्लाह अकबर। खोली बिन यजीद को सर मिला, इमाम हुसैन का सर अक़दस मिला, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद कर लिया। हाथों में हथकड़ी, पाँव में जंजीर बांध लिए और ऊंट पर बांध दिए। बांध कर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल की उम्र है, अपने आंखों के सामने ये सारे मनाजिर देख रहे थे, कैसे बर्दाश्त किए थे भाई। अपनी 14 साल की उम्र में बूढ़े बाप को शहीद होते हुए देखा, भाई अली अकबर, अली असगर को शहीद होते हुए देखा, कासिम को शहीद होते हुए देखा, सब के सब तो शहीद हो गए, सिर्फ एक ज़ैनुल आबिदीन न बचे थे। आखिर किस तरह से वो अपने दिलों पर आराम पाया होगा। अब बताओ, 14 साल की उम्र में ऊंट पर बांध दिए, जब अपने बाप की लाश के करीब से लेकर जाने लगे और आगे सरों को नेज़े पर रखकर नाचता हुआ, सरों को नेज़े पर रखकर नाचता हुआ जाने लगे, तो गशी पर गशी तारी होते थे। गशी किसको कहते हैं, बेहोश हो जाते थे ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन ये देखकर बर्दाश्त न कर सके कि इधर लाशें पड़े हैं और उधर अब्बा जान के सरे अनवर को नेज़े पर रखकर ये लोग डांस कर रहा है।
नाच रहा है। जब बर्दाश्त ना हुआ गशी पर गशी तारी होने लगी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज की, फुप्पी जान, मेरी फुप्पी जान, क्या अब्बू का सर चलकर मेरे पास नहीं आ सकता? क्या मेरे अब्बू के सर की मैं ज़ियारत नहीं कर सकता? फिर बेहोश होने की बात है कि नहीं भाई? हाँ, फिर बेहोश हो गए। हजरत सैयदा ज़ैनब से, इमाम हुसैन की बहन से रहा ना गई। भाई हुसैन के जिस्मों से जाकर चिमट जाती है, मगर जालिमों ने फातिमी खवातीन को भी कैदोबंदी कर दिया। फातिमी खवातीनों को भी हाथों में हथकड़ी, पाँव में जंजीर बांध दिए और डांस करता हुआ। देखो यहाँ से कैसे ये डांस कौन किया था? इमाम हुसैन के सारे लोग लुट गए, शहीद हो गए। अब यही से देखो कि कैसे आज मुसलमानों ये रिवाज कायम हो गया। इब्ने ज़ियाद डांस करता हुआ, तमाम सरों को नेज़े पर रखकर डांस करता हुआ कूफे की तरफ जाने लगा। लड़ाई कहाँ पर हुई? मैदान करबला में। तो अपने घर जाएंगे ना, तो खुशी मनाता हुआ कूफे की तरफ जाने लगा। अभी कुछ दूर ही चला था कि हवा में एक हाथ नजर आया। हवा में अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैन शहादता जद्दिही यौमल हिसाब। उस हाथ में ये लिखा हुआ, जिस कौम ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, क्या कल कयामत के दिन नाना जान की शफाअत की उम्मीद रख सकती है? हरगिज नहीं। जिस कौम ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, क्या नाना जान की शफाअत की उम्मीद रख सकती है? हरगिज नहीं। अल्लाह, उस हाथ में ये लिखा हुआ है। और चलते कूफा पहुंच गया। हजरात मोहतरम, जैसे ही कूफा पहुंचा, यजीद यानी इब्ने ज़ियाद अम्र बिन साद अपने लश्कर को लेकर कूफा पहुंचा, तो इब्ने ज़ियाद घबरा गया, परेशान हो गया, क्योंकि इब्ने ज़ियाद को पता चल गया कि अवाम खानदाने नबुव्वत के लुटे हुए काफिले की बेकसी पर जार रोने लगे। लोगों को पता चल गया कि आले रसूल को शहीद कर दिया गया, तो आवाम खानदाने नबुव्वत के लुटे हुए काफिले की बेकसी पर जार रोने लगे। तो सैयदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज किया, तुम लोग क्यों रोते हो? कत्ल हमें किसने किया? हमें तो तुम्ही लोगों ने कत्ल किया, अब फिर खुद ही रोते हो। रात को इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया। जैसे ही कूफा में पहुंचा अम्र बिन साद का लश्कर लेकर रात के वक्त, तो इब्ने ज़ियाद घबरा गया और ऐलान करा दिया पूरे शहर में कि कोई हथियार लेकर ना निकले, क्योंकि लोगों को पता चल गया। सब लोग तो दुश्मन नहीं थे ना भाई, कूफा में भी तो कोई इमाम हुसैन के मानने वाले थे ना, तो पता चल गया। तो इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया कोई हथियार लेकर ना निकले, क्योंकि आवाम खानदान नबुव्वत के लुटे हुए काफिले की बेकसी पर जार रोने लगी। और खोली इमाम हुसैन के सर को। अब देखो उस सर की करामत, देखो इमाम हुसैन की सर की करामत। खोली बिन यजीद जैसे कूफा पहुंचा, तो वो सर को लेकर, इमाम हुसैन के सर अक़दस को लेकर अपने घर गए। खोली बिन यजीद के पास सर था, घर ले गए तो तनूर बुझा पाछे, तनूर को अच्छा चूल्हा खोली बिन यजीद इमाम हुसैन सर तक ले जाने चूल्हा रखे दी। चूल्हा लेकिन थी, इबादत गुजार थी, तहज्जुद गुजार थी। खोली की बीवी ने जब रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी, तो क्या देखती है कि मेरे चूल्हे में रोशनी, मैं तो आग बुझाकर सोई थी, फिर ये रोशनी कैसी? मैं तो आग बुझाकर सोई थी, फिर ये रोशनी कैसी? करीब गई तो अजीब मंजर देखा भाई, करीब गई तो अजीब मंजर कि सर के चारों तरफ से औरतें बैठी हुई है, उस सर से नूर निकल रहा है, उस सर से नूर निकल रहा है, और सर के चारों तरफ औरतें बैठी हुई है। उनमें से एक औरत कह रही है, ऐ मेरे बेटे फिक्र ना कर, रोजे महशर बरोजे महशर, रोजे जजा बरोजे क़यामत, अल्लाह ताला तुझे जजा अता फरमाएगा, तेरा इंसाफ फरमाएगा। ऐ मेरे बेटे, जब तक तेरे खून के एक एक कतरे का बदला ना ले लूंगी, अर्श इलाहा का दामन ना छोड़ूंगी, अर्श इलाहा का दामन ना छोड़ूंगी। जैसे ये आवाज सुनी, खोली बिन यजीद की बीवी बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश में आई तो गैब से आवाज आई, खाउन कहते हैं शोहर को, ऐ बीवी, खाउन के गुनाह में बीवी को शामिल नहीं की जाएगी।
और उनके गुनाह में बीवी महफूज ना होगी। हजरत मोहतरम वो औरत कौन थी? हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत मरियम, हजरत आसिया। अब खोली की बीवी ने खोली से जाकर अर्ज किया, खोली को जगाया, वो तो सो रहा था, खोली को जगाया और कहने लगे रिछवा के। अब खोली भी नहीं है, सीधे बीवी तूने कहा था कि मैं बागी को कत्ल करने के लिए गया हूँ, बागी को कत्ल करने के लिए गया, तो ये तो नबी के नवासे का सर है, ये तो नबी के नवासे का सर है। ऐ जालिम, देख उस सर से कैसे नूर निकल रहा है, और उस सर की ज़ियारत के लिए अल्लाह के फरिश्ते हाजिर हैं, अल्लाह के फरिश्ते आ रहे हैं। और तुझ पर देख, अपनी किस्मत पर देख कि आसमान से तुझ पर लानतें बरसती हैं। अल्लाह अकबर, आसमान से तुझ पर लानतें बरसती है। उस बीवी ने कहा, ऐ खोली, अब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, तेरे साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। खोली ने क्या कहा? ऐ मेरी बीवी, तू घर छोड़कर मत जा, अगर तू चली जाएगी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो खोली की बीवी ने क्या कही कि तू भी बर्बाद हो जाए, तेरा घर भी बर्बाद हो जाए, तू भी हलाक हो जाए, तेरे बच्चे भी अनाथ हो जाए, इसलिए कि तूने फातिमा ज़हरा के घर को उजाड़ा है। अल्लाह करे तेरा घर भी उजड़ जाए, अल्लाह करे तेरा घर भी उजड़ जाए। उसी वक्त खोली की बीवी एक चादर ओढ़ी और उस अंधेरी रात में, रात्रि के वक्त घर से निकल गई, फिर किसी ने उसका निशाना भी नहीं दिया। सुबह हुई, इब्ने ज़ियाद ने दरबार लगाया, मजलिस लोगों से खचाखच भर गई। इब्ने ज़ियाद के हाथ में छड़ी थी, और इमाम हुसैन की जुबान मुबारक पर मार रहा था, छड़ी से इमाम हुसैन की जुबान पर मार रहा था, इमाम हुसैन की जुबान पर मार रहा था। तो उसी मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरकम भी मौजूद थे। कौन? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरकम भी वहां मौजूद थे। उन्होंने जब ये देखा तो उनसे बर्दाश्त ना हो सका, अर्ज करने लगा, ऐ जालिम कमबख्त, छड़ी को हटा ले, इसलिए कि मेरी आंखों ने देखा है कि खुदा की कसम मेरी आंखों ने देखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जुबान मुबारक को बार बार चूमा करते थे, बार बार चूमा करते थे। अल्लाह करे तेरा हाथ हलाक हो जाए, अल्लाह करे तू हलाक हो जाए, अल्लाह करे तेरा हाथ काम ना करे, अल्लाह करे तू बर्बाद हो जाए। जैसे ही हजरत ज़ैद बिन अरकम ने ये कहा तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर तू पूरा होकर सटिया ना गया होता तो तेरी गर्दन उड़ा देता, तेरी गर्दन उड़ा देता। मगर हजरत ज़ैद बिन अरकम ने एक अल्फाज का और कहकर मजलिस से उठ कर चले गए। ऐ कुफा वालों, हजरत ज़ैद बिन अरकम ने कहा, ऐ कुफा वालों, आज के बाद तुम लोग गुलाम हो, गुलाम। उसने ज़हरा के लाल को कत्ला किया, तुम लोगों ने ज़हरा के लाल को कत्ला किया, और इब्ने मरजना और इब्ने ज़ियाद को अपने हाकिम बनाया, जो तुम्हारी नेकियों को कत्ल करता है और तुम्हारी शरीरों को जिंदा रखता है, जो तुम्हारी नेकियों को बर्बाद करेगा, तुम्हारी नेकियों को कत्ल करेगा और तुम्हारी शरीरों को जिंदा रखेगा। तुमने उन लोगों के साथ दिया है, आज के बाद तुम्हारा ईमान खत्म। ये कहकर हजरत ज़ैद बिन अरकम चले गए। और इधर इब्ने ज़ियाद ने क्या कहा कि तमाम सरों को अलग अलग नेज़े पर रखो, तमाम सरों को देखो। भाई ये ढोल तमाशा कौन बजा रहा था? हकीकत कर रहा हूँ, जो ध्यान से सुन लेगा आज के बाद कभी ये सब मन्नत नहीं मांगेगा। कोई माने या बाहर से जाए, जहन्नम किस लिए बनाया अल्लाह ताला ने, हमको उससे क्या फर्क पड़ता है? ना मानो, बयान करने का काम बयान करेंगे। अल्लाह ताला ने जन्नत जहन्नम किस लिए बनाया? भाई जन्नत जहन्नम किस लिए बनाया? सिर्फ एक ही बना था। नहीं मानो तो मत मानो, जहन्नम में भी तो जाना है ना। हम जबरदस्ती थोड़ी जाएंगे, जो हक है वो बता रहे हैं। जो मानेगा उसको जरूर जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा तो जहन्नम भी तो अल्लाह ही ने बनाया है, पता चलेगा। फालतू इतना क्यों बात है पेचीदा करते हो? सुनो मेरी बात। तो इब्ने ज़ियाद ने क्या कहा, अलग अलग नेज़ा तैयार किया और तमाम सरों को अलग अलग नेज़े पर रखा, तमाम सरों को अलग अलग नेज़े पर रखा और शराब पीना शुरू किया, शराब, और जश्न का एहतमाम किया। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया
کہ چلو تمام سروں کو نیزے پر رکھ کر کوفہ کے بازار میں پھرایا جائے، گھمایا جائے۔ آج وہی مسلمان کر رہا ہے، ڈھول اور آخرا لے کر گاؤں گاؤں میں گھومتا ہے۔ کون گھما تھا اس وقت؟ یزید ابن زیاد۔ کیا کہا ابن زیاد کہ تمام سروں کو نیزے کے نوک پر رکھ کر کوفہ کے بازار میں گھمایا جائے۔ اللہ اکبر۔ ابن عساکر نے منہان بن عمر سے روایت کی کہ امام حسین کے سر کو لے کر جیسے جانے لگا، ایک مکان کے قریب سے اس کا گزر ہوا، امام حسین کا سر کا گزر ہوا تو اس مکان کا مالک قرآن کریم کی آیت تلاوت کر رہا تھا، ام حسبت انما اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف کا قصہ کتنا بڑا عجیب ہے، اصحاب کہف کا قصہ کتنا بڑا عجیب ہے۔ تو سر حسین سے آواز آئی، سر حسین سے، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، ان قتل الحسین کان منہ عجابا۔ حسین کا قتل اس سے بھی بڑا عجیب ہے، حسین کا قتل اس سے بھی بڑا عجیب ہے۔ ایک روایت میں اس طرح سے یہ الفاظ موجود ہے، عجاب من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ امام حسین کا قتل ہونا، نیزے پر سوار ہونا، نیزے پر چڑھنا سب سے بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرات محترم، پھر جب کوفہ میں خوب گھوما، خوب جشن منایا، شراب پی کر، گنجا پی کر، ڈانس کرتا ہوا پورا کوفہ کا بازار گھوما ابن زیاد کے تمام لشکروں نے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا اس کو، شمر کو، کوفہ میں خوب تشہیر کے بعد، خوب گھومنے کے بعد، سروں کو لے کر نیزے پر رکھ کر، نشے کی حالت میں شراب پی کر گھومنے کے بعد ابن زیاد نے کہا شمر سے کہ تمام لشکروں کو لے کر سر حسین اہل بیت کو، سر حسین اور اہل بیت کو دمشق یزید کے دربار میں لے چلو۔ یزید کہاں پر رہتا تھا؟ دمشق میں۔ دمشق جگہ کا نام ہے، دمشق، یزید کے دربار میں لے چلو۔ یزید ابن زیاد نے حکم دیا، شمر 5000 لشکر سمیت دمشق کی طرف روانہ ہوا، اور جیسے یہ قافلہ شہر مامورہ کے پاس پہنچا تو وہاں پر بھی سر حسین سے سنو کرامت۔ وہاں پر پھر کون سا واقعہ پیش آیا؟ امام حسین کی سر کی کرامت دیکھو۔ جیسے ہی یہ قافلہ شہر مامورہ کے ایک پہاڑ کے قریب جا کر رکا، ٹھہرا، تو شہر مامورہ کا حکیم، شہر مامورہ کا حکیم عزیز بن ہارون ایک یہودی تھا، مسلمان تھا لیکن یہودی تھا، ہمارے ساتھ کے نہیں تھے، وہ یہودی تھا۔ تو جیسے رات کو وہ سویا تو خواب میں خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو عزیز بن ہارون جو شہر مامورہ کا حاکم تھا عرض کرنے لگے، حضور آپ مغموم ہے، پریشان ہے، کیا بات ہے، اس طرح سے غمزدہ کیوں ہے؟ حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں میں آنسو ہے، رو رو کر عرض کرتے ہیں کہ کیسے بتاؤں، کیسے حالت سناؤں۔ آج حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے، ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ صبح سر حسین اور قافلہ تیرے شہر مامورہ کے پاس سے گزرنے والا ہے، امام حسین کی آزاد کردہ لونڈی تیرے پاس آئے گی، تجھے چاہیے کہ اس کی خدمت کرے اور سر حسین کو میرا آخری سلام پہنچا دے۔ کٹے ہوئے سر سے کیسے سلام کا جواب آتا ہے؟ کبھی سنا تھا بھائی؟ لوگ تو سمجھتے ہیں باہر سے مولوی آئے گا تو باپ رے میں پھٹا دیا، چلا گیا، ہلا دیا۔ ہم نے تو 8 سال میں وہ بیان کیا کہ باہر کے مولانا کو اگر 10 کو لاتے تو اتنا بیان نہیں سنا پاتے، ایک کو نہیں 10 کو، اور 10 لاکھ روپے خرچہ کرتے تو جتنا بیان میں نے کر دیا اتنا نہیں سن پاتے، اور نہ اس انداز میں سناتے۔ ہارون نے خواب میں دیکھا، اب امام حسین کی آزاد کردہ لونڈی، اس کا نام کیا تھا؟ شیری۔ وہ جیسے ہی وہ قافلہ امام حسین کا سر شہر مامورہ کے ایک پہاڑ میں رکا تو شیری وہاں پہنچی اور امام زین العابدین کے پاس پہنچ کر عرض کرتی ہے، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میرے پاس کچھ سونے چاندی ہے، کچھ زیورات ہے،
इसको बेचकर आप लोगों के लिए कपड़े खरीद करके लाऊं। कपड़े तक नहीं थे मेरे दोस्तों बुजुर्ग, 3 दिन तक खाना बंद था, पानी बंद था। इमाम हुसैन ने अपने दीन के लिए, अपने नाना जान के दीन के खातिर सब कुछ लुटा दिया, मगर यजीद जश्न मना रहा था। अल्लाह अकबर। शीरी अर्ज करती है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मेरे पास चंद जेवरात है, इसको मैं शहर में जाऊं बेचकर आप लोगों के लिए खाने पीने कपड़े वगैरह खरीद करके लाऊं। बार बार असरार किए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने की तरफ से इजाजत मिल गई। शीरी शहर मामूरा में दाखिल हुई, पहुंचती है तो क्या देखती है कि दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है। शीरी ने दस्तखत दी, इतने में अजीज बिन हारून पहुंच चुके थे। जैसे वो वहां पहुंचा तो आवाज दी, ओ शीरी जरा ठहर जा, अभी दरवाजा खोलता हूं। जैसे अजीज बिन हारून ने शीरी कहकर पुकारा तो शीरी परेशान, मेरा नाम इस यहूदी हाकिम को कैसे पता चला, इस यहूदी बादशाह को कैसे पता चला। शीरी करीब आई, पूछा, ऐ अजीज बिन हारून जरा ये तो बता मेरा नाम तुम्हें कैसे पता चला। अजीज बिन हारून ने सारा वाकया बयान किया कि रात को मैंने सोया, ख्वाब देखा कि इमाम हुसैन के साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, तो मैंने इमाम हुसैन से अर्ज किए, मैंने ख्वाब देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, फिर मुझसे कहा कि शीरी आएगी और सर हुसैन को मेरा सलाम पहुंचा देना। और फिर मैंने अर्ज किया, ऐ मूसा नबी क्या मोहम्मद हकीकत में अल्लाह के सच्चे रसूल है। तो हजरत मूसा ने अर्ज की, अरे सच्चे नबी नहीं, ये तो रसूलों के भी, अंबियाओं के भी रसूल है। सुभान अल्लाह। तो अजीज बिन हारून ने सारा वाकया शीरी के पास रख दिया और बहुत सारा सामान कपड़ा वगैरह लेकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खिदमत में हाजिर हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में हाजिर होने के बाद अब देखो कटे हुए सर से सलाम का जवाब कैसे आया और यजीद कैसे मिट गया। कटे हुए सर से सलाम का जवाब कैसे आया और यजीद कैसे मिट गया। अल्लाह अल्लाह। अजीज बिन हारून ने उस कटे हुए सर को सलाम किया तो कटे हुए सर से सलाम का जवाब आया। जैसे ही कटे हुए सर से सलाम का जवाब आया, वो यहूदी उस सर के सामने अपने सर को झुका दिया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। कटे हुए सर भी इस्लाम में दाखिल कर रहे थे, कटे हुए सर भी लोगों को कलमा पढ़ा रहे थे और ये जिंदा रहकर इनका नाम लेने वाला कोई नहीं। कटे हुए सर से आवाज आई, वालेकुम सलाम। जैसे ये जवाब सुना अजीज बिन हारून कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने की दरख्वास्त पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि शीरी की शादी, शीरी का निकाह अजीज बिन हारून से हो जाए। तो शीरी ने क्या कहा मालूम है, आजकल तेरा आरोप कर रहा ना का हुजूर मैं अहले बैत अतहार की जुदाई पसंद नहीं करती। ने कहा कि शीरी की शादी अजीज बिन हारून से हो जाए क्योंकि वो अब यहूदी था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, तो शादी हो जाए। तो औरत क्या कह रही है शीरी कि हुजूर मैं वैसे ही रहना गवारा कर सकती हूँ मगर अहले बैत की जुदाई मैं पसंद नहीं करती। तो शीरी कहाँ से आई थी मालूम है, हजरत शहर बानू ने शीरी को ईरान से लाई। तो शहर बानू ने अर्ज की, दरख्वास्त की कि तैयार हो गई, अजीज बिन हारून के साथ शीरी का निकाह हो गया, शीरी का निकाह हो गया, शादी हो गई। उसके बाद अब मुख्तसर में सुनो, टाइम बहुत हो गया होगा शायद, टाइम लगा है ना। हाँ, उसके बाद क्या होता है, यजीद के पास पहुंचा, ये लुटा हुआ काफिला यजीद के पास पहुंचा, लेकिन काफिले से अभी तो काफिला जा ही रहा है। इससे पहले फिर एक वाकया पेश आता है ज़हर बिन कैस का, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, अभी इतना टाइम नहीं है। ज़हर बिन कैस के साथ फिर क्या होता है, फिर वो नसरानी कैसे ताना देता है। ज़हर बिन कैस के पास क्या होता है और एक नसरानी यजीद के दरबार में होता है। फिर बहुत बड़ा वाकया है, इस बस मुख्तसर में सुनिए कि जैसे ये लुटा हुआ काफिला यजीद की बारगाह में पहुंचा, यजीद की बारगाह में पहुंचा, सुनो सुनो सुनो, इधर 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 ध्यान, इधर ध्यान रखना। यजीद की बारगाह में पहुंचा, यजीद की बारगाह में पहुंचते ही उन जालिमों ने यजीद की बारगाह में जैसे ही पहुंचा तो सरे हुसैन को एक तश्त में रखकर यजीद के दरबार में पेश किया, एक तश्त में रखकर यजीद के दरबार में पेश किया। और यजीद ने कहा, अरे
देखो इसका चेहरा भी कितना खूबसूरत है, इसका चेहरा अभी भी कितना खूबसूरत है। और यजीद की बारगाह में कैसर रूम का एक नसरानी कासिद रहता था, नसरानी था। पहला वाला यहूदी वो कलमा पढ़ लिया और दूसरा वाला नसरानी कासिद रहता था। अब दूसरे शहर का आदमी घूमने के लिए आया, बातचीत करने के लिए। एक नसरानी कासिद था, तो उसने पूछा, यजीद ये क्या माजरा है? कहा ये हुसैन इब्न अली का सर है। चुप हो गया, खत्म। ये हुसैन इब्न अली का सर है, इन्होंने हमसे बगावत मोड़ ली थी, इन्होंने हमसे बगावत मोड़ ली थी, इसलिए हमने इनका सर तन से जुदा कर दिया है। अल्लाह अकबर। अब वो नसरानी क्या कहता है, कैसर रूम का वो नसरानी कासिद कहता है, अरे जालिमो तुम कैसे मुसलमान हो? तुम लोग अपने आप को मुसलमान कहलाते हो? अरे हम लोग आज भी जहाँ हजरत ईसा अला नबीना अलैहि तस्लीम के सवारी की, हजरत ईसा नबी अलैहि तस्लीम के सवारी की पाँव के निशान पाते हैं। सवारी हजरत ईसा के पाँव के नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सवारी के पाँव के निशान पाते हैं, उनकी हुर्मत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, ताजीम बजा लाते हैं, उन पर जरो जवाहरात लुटाते हैं। और तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के नवासे को मार डाला। आखिर मरने के बाद लोगों को, हुजूर को कब्र में कौन सी सूरत दिखाओगे, कौन सा चेहरा दिखाओगे? और दुनिया में जीते जी फिर देखना तुम पर ऐसी लानत बरसेगी, ऐसी लानत बरसेगी कि दुनिया वाले भी तुझसे दूर हो जाए, दुनिया वाले भी तुझसे दूर हो जाएंगे। अब यजीद घबरा गया और घबरा कर कहने लगा, अगर तू कैसर रूम का नसरानी कासिद ना होता तो तेरी गर्दन उड़ा देता, तेरी गर्दन उड़ा देता। अब वो नसरानी कासिद कहता है, अरे जालिम कमबख्त, जितना फिक्र तुझे एक कैसर रूम के एक नसरानी कासिद का है, अगर मुझसे ज्यादा इमाम हुसैन का ख्याल कर लेता, उस इमाम हुसैन जिसके बारे में सरकार ने कहा, इन्नल हसन और हुसैन सैयदा शबाबी अहली जन्नत, हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार है, तो तुमने तो जन्नतियों को टुकड़े कर दिया, तो तुम जन्नत में कैसे जाओगे? जो जन्नती जवानों के सरदार है उसका सर कलम कर दिया। ये किसका फरमान है? जिसको कत्ल किया, जिसको शहीद किया, उसी के नाना जान का फरमान है, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अली जन्नत, हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार है। अरे तुझे मेरा फिक्र है इसलिए कि मैं कैसर रूम का कासिद हूँ, और जिस नबी के सदके से ये आसमान बना, ये जमीन बनी, ये सारी कायनात बने, जिस नबी ने जन्नत का, जो नबी जन्नत का सरदार है, जिस नबी ने अपने नवासे को जन्नती जवानों को सरदार बनाया, जिस नबी की बेटी तमाम जन्नती औरतों की सरदार, जिस नबी के दामाद जब तक टिकट ना देंगे कोई जन्नत में ना जा पाएगा, तुमने उसी नबी के नवासे को सर कलम कर दिया। अच्छा, इससे बेहतर अच्छा होता कि तू मेरा फिक्र ना करके अगर इमाम हुसैन का फिक्र कर लेता तो तेरी दुनियावी जिंदगी भी संवर जाती और मरने के बाद कब्र में भी सरकार की ज़ियारत कर ले। सुभान अल्लाह। मरने के बाद कब्र में सरकार की ज़ियारत कर लेगा। अल्लाह अकबर। अब यजीद सर पीट कर रह गया, है अफसोस, है अफसोस, अब क्या होगा? अब मैं तो दुनिया भर में बदनाम हो जाऊंगा, अब मैं दुनिया भर में बदनाम हो जाऊंगा, अब क्या करूं? हर जगह अब उनकी बदनामी फैलने लगी। अब क्या हुआ? यजीद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, मुख्तसर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया और कहा, क्या कहा कि हजरत जो कुछ होना था हो गया। तवज्जो से, कोई बोलेगा नहीं, मजे की बात बता रहा हूँ। हजरत जो कुछ होना था हो गया, अब वो बातें छोड़िए, अब मुझसे अर्ज कीजिए, कोई ख्वाहिश हो तो मेरी बारगाह में अर्ज कीजिए, मैं आपकी ख्वाहिश को पूरी कर देता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, जालिम मुझको तुझसे कोई उम्मीद नहीं है, मुझको तुझसे कोई उम्मीद नहीं है, मुझको तुझसे कोई उम्मीद नहीं है। आखिरकार यजीद ने कहा, कुछ तो अर्ज कीजिए, मैं पूरी कर देता हूँ। कहा, जब कहते हो तो सुनो, मेरा 4 सवाल है, बस आखिरी बात, ये सवाल सुन लो, पता चल जाएगा कि यजीद कैसे मिट गया और इमाम हुसैन के सर ने कैसे सलाम का जवाब दिया। अब यजीद कैसे मिट गया, बस आखिरी पॉइंट, आखिरी बात। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मेरी 4 बातें, मेरा 4 सवाल है, मेरा सर भी दुखता है भाई,
आवाज तो बैठी हुई है, मेरा सर भी दुखता है, फिर भी दिल नहीं मानता। इमाम हुसैन ने सर कटा दिया। मैं क्या आप लोगों को अगर बताकर हो सकता है कोई अमल कर ले, हो सकता है मेरा भी बेड़ा इसी के सत्य से पार हो जाए, इसलिए बयान कर रहा हूँ। तो सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 4 बातें रखी, 4 सवाल किया। पहला सवाल, मेरे बाप को किसने शहीद किया, उसको मेरे पास भेज, मेरे सुपुर्द कर दो। मेरे वालिद के कातिल को मेरे सुपुर्द कर दो। मेरे वालिद के कातिल को, मेरे वालिद को जिसने शहीद किया मेरे सुपुर्द करो। इसके मेरे सुपुर्द करो, अगर तुम इतने ख्वाहिश पूरी करने वाले हो। दूसरी बात, आज जुमा का दिन है, आज जुमा का दिन है, मुझे खुतबा पढ़ने की इजाजत दे दो। तीसरी बात, जितने लोग शहीद हुए तमाम सरों को मेरे पास जमा कर दो ताकि मैं जिस्मों को सरों के साथ दफन कर सकूं। चौथी बात, बाहिफाजत फातिमी खवातीन को मदीना पाक वापस कर दो, बाहिफाजत। अब पहले ही सवाल में तो यजीद फंस गया। सुनाओ या खत्म कर दो भाई। लोग है तो मजा से लोग गुस्से में आकर लाल पीला होकर अपने लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा, ओ लोगों बताओ हुसैन का कातिल कौन है, हुसैन को किसने शहीद किया। तो लोगों ने कहा खालिद बिन यजीद। खालिद बिन यजीद ने इनकार कर दिया, कहा यह काम सनान बिन अंस का है। सनान बिन अंस ने कहा, मैं क्यों कातिल हुसैन होने लगा, मैं तो कातिल हुसैन पर लानत भेजता हूँ, मैं तो कातिल हुसैन पर लानत भेजता हूँ। सनान बिन अंस ने भी इनकार कर दिया, सनान बिन अंस ने भी इनकार कर दिया। तो यजीद गुस्से में आकर कहने लगा, क्या किसी ने कत्ल भी किया है। तो उधर से आवाज आई, सनान बिन अंस ने कहा ये काम शिब्र का है, ये फेल शिब्र का है। जैसे ही शिब्र का नाम लिया, शिब्र गुस्से में आकर लाल पीला हो गया और कहने लगा, अरे इमाम हुसैन मेरी कौन सी सल्तनत दबा रखी थी कि मैं इमाम हुसैन का कातिल बनने लगा। अरे इमाम हुसैन का कातिल तो वो है जिसको इमाम हुसैन का खौफ था, जो इमाम हुसैन से डरता था, जिसके दिल में इमाम हुसैन का खौफ रहता था। इमाम हुसैन का कातिल वो है जिन्होंने ज़रो जवाहरात के बदले लोगों के ईमान खराब कर दिए। इमाम हुसैन का कातिल वो है जिन्होंने औदो हुकूमत की लालच की वजह से इमाम हुसैन को कत्ल करवाया। सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा, अरे इमाम हुसैन का कातिल मैं क्यों, मेरी कौन सी सल्तनत दबा रखी थी इमाम हुसैन ने। कातिल तो वो है जिसको इमाम हुसैन से खौफ था, जिसने ज़रो जवाहरात के बदले इमाम हुसैन को कत्ल करवाया, ज़रो जवाहरात के बदले लोगों के ईमान को खराब किया, और तो हुकूमत की वजह से इमाम हुसैन को कत्ल करवाया। अब ये बात तो लौट कर यजीद पर आती है, ये बात लौट कर किस पर आती है, यजीद पर। यजीद समझ गया। अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा, हुजूर ये बात छोड़िए, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। बहुत शोर होने लगा, बहुत शोर होने लगा। हुजूर ये बात छोड़िए, कोई मानने के लिए तैयार, ये बात छोड़िए। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मुझे पहले ही यकीन था कि मुझको तुझ पर एक जरा सा भी उम्मीद नहीं है। अब दूसरा सवाल क्या था, क्या जुमा का दिन है, खुतबा पढ़ने के लिए इजाजत दो। खुतबा पढ़ने की इजाजत भी बादरे ना ख्वास्ता ही दी जब टाइम कम था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ऐसी तकरीर, एक छोटी सी ऐसी तकरीर फरमाई कि ज़ायरीन की आंखों में आंसू जारी, जितने सुनने वाले थे आंखों में आंसू जारी हो गए, रोने लगे लोग, सुनने वाले रोने लगे। अब यजीद समझा कि अरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के तकरीर को सुनकर सारे लोग तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुतासिर हो रहे हैं कि सारे के सारे लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ ना हो जाए और मेरा तमाम खेल बिगड़ जाए। उसने फौरन मुअज्जिन को हुक्म दिया, अरे आज़ान क्यों नहीं पढ़ते, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, आज़ान क्यों नहीं देते, जल्दी आज़ान दो ना, टाइम हो चुका है। अरे तक नहीं जरा लोग तकरीर सुनाने मना है तो अच्छा ए मुझे साहब टाइम भेजिए जो मेरी तकरीर सुनाने में सुने ने डोरा डोरा कौन है। अरे मुअज्जिन ने फौरन अज़ान देना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, नाम ला शय्या पे अकबर मिनहु, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अब फिर मुअज्जिन ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नाम शहीदा बिहा,
हय्यी व शारी व दमी, मेरी हर एक चीज ने इस बात की गवाही दी, मेरे जिस्म की एक एक चीज ने उसकी गवाही दी। उसके बाद अब तीसरे पर कौन था भाई, क्या था उसके बाद? मुअज्जिन क्या पढ़ेगा? मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अल्लाह के वास्ते इसी नाम पर रुक जाओ, अल्लाह के वास्ते इसी नाम के साथ ठहर जाओ, इसी नाम पर रुक जाओ। अल्लाह अकबर, मजे की बात कभी नहीं सुने होंगे। इसी नाम का वास्ता, ठहर जाओ। अब मुअज्जिन रुक गया, यजीद परेशान, यजीद घबरा गया। अब मामला क्या होगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लोगों से दरियाफ्त होकर फरमाया, ओ लोगों, इसी नाम का वास्ता। यजीद से मुखातिब होकर चुप बस, लोग तो थे नहीं, ताऊ तुम आप क्यों? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद की तरफ मुतवज्जे होकर अर्ज किया, ओ यजीद, ओ लोगो, ओ यजीदो, सुनो। किसे कहा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद की तरफ मुखातिब होकर कि अब बताओ, अजान में मेरे दादा का नाम है या तेरे दादा का नाम है? मेरे दादा का नाम है या तेरे दादा का? अगर तू अपना दादा कहेगा तो दुनिया वाले तुझे झूठा कहेगी, दुनिया वाले तुझे झूठा कहेगी। और अगर अपना नहीं कहेगा तो फिर ये बता दे, हकीकत क्यों नहीं बताता? मेरे अब्बू को शहीद क्यों गया? अब वो फंस गया, अब ये फंस गया। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाई ये किसका नाम है भाई? हाँ, इमाम हुसैन के दादू का नाम है ना, नाना का नाम है ना। हाँ, तो बताओ मेरे अजान में किसके दादा का नाम है? मेरे दादा का या तेरे दादा का? यजीद खामोश, कह तो नहीं पाए कि मेरा दादा है। हाँ, यजीद से कहा बताओ तेरा दादा है मेरा दादा, अजान में किसका नाम है? यजीद की बोलती बंद हो गई। अगर मेरा दादा है तो फिर हकीकत क्यों नहीं बता देता कि मेरे अब्बू को शहीद क्यों कर दिया, मेरे अब्बू को शहीद क्यों कर दिया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ओ लोगों, क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है, इमाम हुसैन कौन है? क्या नबी का फरमान मालूम नहीं है कि सरकार ने कहा हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है? सरकार ने इमाम हुसैन को अपने कंधों पर सवारी फरमाया करते थे, झूला फरिश्ता झुलाते थे, खुतबा को बंद फरमा दिए थे, सजदे को तवील फरमा दिए थे, हिर ने अपना बच्चा पेश कर दी थी। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हुसैन कौन है? क्या सरकार का फरमान तुम्हें मालूम नहीं है? अल्लाह अल्लाह, लोगों की आंखों से आंसू जारी होने लगे। जब लोगों की आंखों से आंसू जारी होने लगे और लोग समझ गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सारी बात है, तो ये यजीद परेशान होकर फिर मुअज्जिन को डांटना शुरू कर दिया, और कहने लगा, अरे क्यों नहीं बात मानते, जल्दी से अजान देना। अजान तो बाकी है ना अभी, हाँ अजान अभी बाकी है ना। कह रहे भाई क्यों नहीं बात मानते? क्योंकि यजीद का सारा खेल बिगड़ गया। लोग समझ गए कि ये सब खेल जिन्होंने किया वो यजीद है। ये इमाम हुसैन को जो शहीद करवाया या जितने लोग शहीद हुए, इसका मेन कारण जो जड़ था वो यजीद। वो अपना, जैसा अभी मोदी अपना पावर दिखाते हैं, तो यजीद चाहता था कि मेरी बात माने हुसैन, मगर हुसैन कहाँ मानते? अल्लाह अल्लाह कुर्बान जा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सारे लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ हो गए। मुअज्जिन को कहा वो यजीद ने कि जल्दी अजान दो। अजान दिया गया, नमाज हुई, नमाज के बाद एक बहुत बड़ा इजलास कायम किया गया। तो यजीद ने देखा कि सारे के सारे लोग जितने नहीं आए थे सब लोग आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ हो गए। हक तो पता चल ही जाएगा ना, हक तो छुपेगी नहीं। सारे शहर के लोग, तमाम लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आ गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बयानात को सुना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आखिर में वही बात की, ओ लोगों बताओ, तुम लोगों में से कोई ऐसा बंदा है जिसका दादा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हो? इतने बड़े मजमे में मैं कहता हूँ, क्या कोई ऐसा बंदा है जिसका दादा आखिरुज़्ज़मा हुजूर आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हो? सबकी बोलती बंद। तो फिर बताओ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? सबने कहा कि आप ही का दादा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हो।
अल्लाह कौन है भाई? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दादा ही ना है। हाँ, कोई नहीं कह सका, कहते कैसे कि नबी हमारे दादा है। तो जब सारे लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ हो गए, रवाना है आपकी ओलोटे हुकूमत चुलोल कार या का जोड़े हुकूमत टाकी रोहा जाबे कब तक तो पावर ना खाबो। अब ओड़े हुकुम चुलोल मुख्तार अबू सकाफी वहां से टनाटन सुन्नी यहाँ से देवबंदी सुन्नी दे चुलोल वहां की हुकुम दे दे जातारी साथ दी जातारी मार बातेर पर चले ছিল যা যেতে পাবেন ওটা কত ইয়া কা দিনে 240 জন কত করে ইবনে জিয়াদ ভাগবার কোশিশ করেছিল মুখতার আবু উবাইদ সাকাফি লোকলা জেনে ওয়াক দেখা পায় ওইনা ধরায় না ইবনে জিয়াদের দরবার পেশ করে দিয়া ওয়াকো এরা কতল করে দিল हुकुम दिले मुख्तार अबू उबैद सकाफी इसको कत्ल कर दो। इन्होंने इमाम हुसैन के साथ गद्दारी की। शिम्र भागने की कोशिश की, मुख्तार के आदमियों ने शिम्र को पकड़ा और पकड़कर कुत्तों के हवाले कर दिया। कुत्तों ने शिम्र को नोच नोच कर खाया। यानी कि इमाम हुसैन से बगावत करने वाले कोई भी अज़ाब इलाही से बच ना सका, सब अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो। इसी तरह यजीद का नाम मिट गया। यजीद तो उस वक्त जश्न मनाया था, तमाम सरों को नेज़े पर रखकर यजीद ने खूब जश्न मनाया, शराब पीकर गंजा पीकर। मगर आज गांव में कोई मुसलमान यजीद नाम रखने वाला नहीं है। और अगर हुसैन नाम लिखा जाए, ढूंढा जाए, तलाश किया जाए तो बहुत हुसैन मिलेंगे। गांव में सैकड़ों हुसैन, शहर में सैकड़ों हुसैन, पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों हुसैन मिल जाएंगे। इससे पता चला कि जिंदा रहने के बाद जो जिंदा रहकर जश्न मनाया मगर उसका अकीदा नहीं था, वो शरीयत मुस्तफा को मिटाने के लिए जश्न मना रहा था। तो इससे पता चला जो शरीयत मुस्तफा बचाने के लिए सर देने के बाद दुनिया उसे क़यामत तक याद करती है। और जो जिंदा रहा यजीद, उसका नाम कोई लेने के लिए तैयार भी नहीं। सुभान अल्लाह। इससे पता चल गया यजीद मिट गया, इमाम हुसैन सर कटाकर दीन इस्लाम को बचा लिया। इसलिए इस इमाम हुसैन का नाम था, है, कयामत तक रहेगा। पता चल गया? पता है? इसलिए कह रहा हूँ आज के बाद अल्लाह के वास्ते मैं रहूं या ना रहूं, जितने लोगों ने सुना है, हालांकि आवाज तो सब तक पहुंचती है मगर उन लोगों की नहीं जितने लोग यहाँ बैठे हुए हो। सुनो जितने लोग यहाँ बैठे हो, कम से कम आज ये अहद करके उठो ताकि इमाम हुसैन भी गवाह बन जाए कि आज के बाद हम कभी ढोल नहीं बजाएंगे, हम कभी आखरा की मन्नत नहीं करेंगे, हम कभी ताजिया की मन्नत नहीं करेंगे। अगर मन्नत करेंगे तो 10 रोजे के मन्नत करेंगे, कुरान की तिलावत की मन्नत करेंगे, यतीमों फकीरों को बुलाकर खिलाने की मन्नत करेंगे, 10 कुरान मस्जिद में लाकर देने की मन्नत मांगेंगे। क्योंकि 10 मुहर्रम तक ये सिलसिला चलता रहा और इमाम हुसैन कुरान की तिलावत करते रहे, पूरी रात तिलावतों में गुजारे, उसके बाद तहज्जुद भी पढ़े, लास्ट में सजदे में भी नमाज की हालत में शहीद हुए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो आप लोग दिल में ये हद कर लो, जितने लोग यहाँ हो अपने बच्चों को ये वसीयत करो कि कोई भी ऐसी मन्नत मांगना नहीं। अनजाने में करते थे इतना पकड़ नहीं, जानने के बाद जो करेगा उसकी बख्शाइश नहीं। वाह दावाना अरे अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। सलाम